So, sir, now you can. मुझे धरती से प्रेम है। ओह, ऑलमोस्ट सिटिंग ऑन द डायस में तो नीचे ही बोल के चलिए। Central Council member, a very young and energetic Central Council member, I tell you. I've seen him there working. See, Arpit Kabra ji, yes, our chairman of the WRC, CA Ketan Shahya ji, Pinky Kedia ji, CA Rakesh Shah ji, विजेंद्र जैन जी, बाकी नाम लिखे थे उधर हैं, जरा उनको आवाज चली जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक, आ गए। पेनुल शाह जी तो आ गए। सीए प्रीति सावला जी, जयेश काला जी, श्वेता जैन जी, पीयूष चाडक जी वाइस चेयरमैन, ऑफ कोर्स फैनल जी तो लिख दिया, संजय निकम जी आ गए। चलिए, और मुर्तजा कांचवाला जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल फ्रेंड, लेट मी टेल यू, you are thinking of income tax bill 2025. Yes, of course. I remember we had given them a income tax bill way back in 2018-19 that contained only 274 sections. The present bill is 536 section. When we read them 274 section, we were told later on, how will we train our officers now? They know the old law, and they have no knowledge that you have condensed from 580 section to 274 section without any proviso, without anything. And what will happen to the judicial decision which have been there on the long way? So the effort was dropped. Although we worked for 2 years, the effort was dropped. Now the income tax bill is there, 2025. This has got 536 section, 16 schedules. Nothing new, nothing new. We already had more than 590 sections in the Income Tax Act. If you go to the, Google, you'll see there are 298 sections. This is absolutely wrong. 298, so right from the beginning it is 298, it is absolutely wrong. You know, 22 section to 27 is house property, 28 to 44 was business and 45 to 55 capital gain, 56 to 59 was other sources. And if you had to bring any amendment, what was the possibility? Watertight, 28 to 44. So that's why 44 capital A, 44 double A, 44 B, 44 BB, 44 BBA, 44 triple B, BBC, BBD. This subsection is there. 35, 35A, 35AB, 35AC, 35AD, ये सेक्शन ही पता है। 111A, 112, 112A, 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115AE, 115AF, 115G, 115H, 115, ये सेक्शन है। ऐसे 115B, डबल बी, BBA, BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, सेक्शन है ना सर? BB, BBA, triple B, BBC, BBD, BBE, BBF, BBG, BBH, BBI, BJ. This is section, sir. We had 590 sections. Now reduced to 536. I'll tell you why. But I used to say one more thing also, and used to tell our young chartered accountants, kindly read one section every day. Sir, समझ में नहीं आता। मैंने पढ़ लिया करो, फिर भी एक सेक्शन रोज पढ़। क्या ठीक है सर, आई विल डू दैट। आफ्टर 4 hours I take a call. Sir, I read one section. And then what happened? Sir, it has taken 4 hours. Don't worry, ये सुन तो लो। लास्ट में लिखा था it is not applicable from assessment year 2009-10. Do we remember कि वो सेक्शन है कि खत्म हो गया? हमें नहीं मालूम, इतने सेक्शंस हैं। मैंने कहा आगे से पढ़ना, या तो लास्ट लाइन देखना या पहली लाइन में लिखा होता है बिटवीन दिस डेट टू दिस डेट। एम आई राइट और रॉन्ग? आप पढ़ते रहते, पता ही नहीं है कि नहीं है। अबाउट 75 इनऑपरेटिव सेक्शंस हैव बीन डन अवे विद, वो ओमिट कर दिए गए। जैसे हमने पुराने जमाने वाले हमारे कमलेश जी भी बैठे, ATH, ATHS, ATHHA, ATHHB, ATHSC, ATHSD, ATHHE, ATHHF, सब हमने करे दोज डेज। ये यंग को नहीं पता, but there were so many sections
which are no use now, so they have been removed. As regards old regime, which is still there, had they gone away, this old regime is still there in this. I said, what is this? You were telling we are coming out with a new regime. Why old regime is continuing? At one time, I was saying, please do not go away, or do away with old regime. They said, nahi, old regime हमें हटानी है. क्या हुआ? तो देखो आपको बताते हैं. Whenever a client comes for the council for filing a return, he has not paid tax. क्या बोलते हैं? डाल दे 80C. समझ गया मैंने क्या कहा है? डाल दे 80D, डाल दे 80E, डाल दे. समझ गया? अब जी में तो अब रूप पता लग गया. पहले तो था डाल दे. कई लोग तो ये भी डाल देते थे 80U, डिसेबिलिटी, वो भी क्लेम कर लेते. 98% देयर इज नो स्क्रूटनी. 98% देयर इज नो सिक्योरिटी. तो ये चलता था, 2% पकड़े जाते थे. दिस इज व्हाट हैपनिंग. और ये मैं लेक्चर कई जगह से दे रहा था. अब देख लीजिए फंस गए सब. फॉर्म 1, फॉर्म 4 पूरी डिटेलें मांग ली कि नहीं मांग. अभी तो आया few days back. Now you have to give complete detail of that form 1 and form 4, all those detail of 80C, 80D and all that. It was not there earlier. ये पता लगा उनको ये हो रहा है. फिर दूसरा पूछा, सर कर दीजिए क्या हुआ? कहते सैलरी वाले बहुत तंग करते हैं. कई बार मैंने सुना है. फिर क्या हुआ? सर 70% claim of HRA are bogus. Somebody is paying the brother, to sister, mother, father, and they are not paying tax. यहां तक कि अपनी बीवी को भी दे रहा है. वो कहता घुसने नहीं देती, पहले मेरा रेंट दे. और 2 जजमेंट आपके ट्राइब्यूनल की हैं. बॉम्बे ट्राइब्यूनल की 2 जजमेंट है दैट यू कैन पे रेंट टू योर स्पाउस आल्सो एंड डिडक्शन विल बी अलाउड. इट इज देयर. और क्या बात है? कहने ये जो सैलरी वाले हैं ना, ये दान बहुत देते हैं. सिर्फ सैलरी वाले ही दान देते हैं और कोई नहीं देता है. हम तो मांगते मांगते थक गए. बिनावल फंड में दे दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई देता है ना. और सैलरी वाले रोज दान देते. मैंने कहा वो तो कबीरदास लिख गए थे. क्या लिख गए थे कबीरदास? कबीरदास ने कहा था चिड़िया चोच भर ले गई, नदी न घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे. कह के वक्त कबीर धन का घटा तो वापस आ गया और साथ में डिडक्शन भी मिल गई. समझ में आया? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. And they wanted to do away with the old regime, but they have still retained it. Purpose सुन लीजिए क्यों. एक भी सेक्शन को डिलीट नहीं किया जो एप्लीकेबल है. एज इट इज रखा है. Sentences, if it is a big sentence, broken into small sentences. Wherever notwithstanding was there, ये ब्रिटिश इंग्लिश इंडियन इंग्लिश हो गई. 250 जगह पर notwithstanding था. वहां लिख दिया irrespective of. 250 places the word was notwithstanding. Now it is irrespective of. 700 and odd explanation थी और सिर्फ 2 ही एक्सप्लेनेशन है. 2 ही एक्सप्लेनेशन है. सब खत्म. कितने प्रोवाइजो होते थे? Provided that, provided further that, provided also that. 24 प्रोवाइजो इन सेक्शन 1023C. कितने प्रोवाइजो होते थे? कौन लाया था ये प्रोवाइजो? कौन लाया ये प्रोवाइजो और कौन लाया ये सेक्शंस में? ये बैठे हैं लर्नड पर्सन. जहां लूपहोल हुआ वहां प्रोवाइडेड डाल दिया उन्होंने. क्या करे बेचारे. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? ऑल कैपिटल सेक्शंस हैव बीन अलॉटेड नंबर. जितने भी कैपिटल, अब कोई ए बी वगैरह नहीं. दे हैव बीन अलॉटेड नंबर. दैट्स व्हाई द नंबर. लेकिन फिर तो 590 हो जाना चाहिए था. कुछ एलीट कर दिए, कुछ शॉर्ट कर दिए. बिजनेस प्रोफेशन में 65 सेक्शन थे, 41 कर दिए. लेकिन क्या किया वो अभी आपको बताता हूं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दी एक्सप्लेनेशंस को जहां जहां एक्सप्लेनेशन थी उसको वेयर कर दिया. वेयर इट मींस दिस थिंग. जहां प्रोवाइजर था उसको सब सेक्शन डाल दिया. इंग्लिश सिंप्लीफाई की है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया. और आपको पता है बड़े दिनों से हो रहा है. जो बहुत बड़ा सेंटेंस होता था, जैसे 9B में था, 45(4) में था, A इज इक्वल टू B प्लस C माइनस D. ये ऐसे को क्यों किया गया?
नीचे लिख दिया व्हाट यू ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी, सो दैट इट लुक्स सिंपल. अदरवाइज में रन इनटू इनकम टैक्स में तो आपको पता ही है, सेक्शन, उसके नीचे सब सेक्शन, उसके नीचे क्लॉज, क्लॉज के नीचे सब क्लॉज, सब क्लॉज के नीचे सर आइटम है, आइटम के नीचे सब आइटम है, फिर प्रोवाइडेड दैट, फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कितने ही, फिर एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, भूल गए 2A, 2B, 2C, एक्सप्लेनेशन नहीं, उन सबको हटा दिया. अब जरा सुनिए, whenever any income act is written, section 1 is always common. उसका short title, applicability and extent. ये होता है जो भी हो. Income Tax Act 1961, section 1 subsection was this act may be called Income Tax Act 1961. Subsection 2, it is applicable to whole of India. Subsection 3, save as otherwise provided. Save का मतलब समझते हैं, except as otherwise provided. This is applicable from 1st April 1962. 2 क्यों था? Assessment year. 2 मतलब assessment year 62, 63. पहले तो previous year assessment year. अब तो previous year assessment year है नहीं. तो कहा डाला section 1, subsection 1. This act may be called Income Tax Act 2025. 61 year के बाद बदला है. This act may be called 2025. Applicable to whole of India. Subsection 3, save as otherwise provided. This will become applicable from 1st April 2026. ये assessment year नहीं है. 26 is tax year. Now there is no word called previous year. There is no word called assessment year. The word called is tax year. अच्छा किया है. बड़ी गलतियां होती थी कि चालान भरते थे तो कभी असेसमेंट ईयर लिख देते थे और कभी प्रीवियस ईयर भी गलती से लिखा जाता. नाउ इट इज ओनली टैक्स ईयर. इसलिए 26-27 असेसमेंट ईयर भी होगा और टैक्स ईयर भी होगा. एम आई राइट और रॉन्ग? इट विल बी असेसमेंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 25-26. इट विल बी ए टैक्स ईयर फॉर द न्यू एक्ट 2025. क्लियर हुआ सर? सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस होती है, मोस्टली सेक्शन 2, और कई बार इसको इंटरप्रिटेशन भी बोल देते हैं. बाकी जगह इंटरप्रिटेशन यूज किया है और सेक्शन 2 के लिए डेफिनेशन. पहले सेक्शन डेफिनेशन सी 48 क्लॉजेस थी. सेक्शन 2 क्लॉज 48 लास्ट हुआ, 0 कूपन बॉन्ड. 48 नहीं थी, उसमें तो क्लॉजेस थे 222, 222E, 220, सही है, 229, 229A, 242A, 242B, 246, 246A क्लॉजेस ही थी. देयर वर अबाउट 75 क्लॉजेस. क्लॉजेस कुछ डेफिनेशंस जब कुछ चैप्टर्स के एंड में थे, उनको बिगिनिंग में ले आए. सो नाउ देयर आर 112 क्लॉजेस इन सेक्शन 2. 112 डेफिनेशन सेक्शन 2 में डाल. बाकी भी है, but here major all section 2 is meant for the whole income tax act. Particular chapter में जो होता है that is meant for only that chapter. So therefore now there are 112 clauses in section 2 without any capital. 1A होता था agriculture income, that has become 2 subsection clause 5. 2.7 होता था assessee, that has become 2.11. 2.11 होता था ब्लॉक ऑफ एसेट, दैट हैज बिकम 2.17. आपको 2.22 बहुत याद रहता है, याद रहता है ना, वो 2.40 हो गया. सेक्शन 2 क्लॉज 40. इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 में वो 2 क्लॉज 49 हो गई, वो 2 क्लॉज 49 हो गई. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 42A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 242B, वो 102 और 103 हो गई. नंबर बदल गया, बाकी है बट वो नहीं है, बीच में कुछ नहीं. सेक्शन है. पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 होती थी, वो 2 क्लॉज 77 हो गई. चैरिटेबल ट्रस्ट की, सॉरी पहले कैपिटल एसेट 2 क्लॉज 14 होता था, चैरिटेबल वो 222 हो गया. चैरिटेबल पर्पस 215 होता था, वो 2 क्लॉज 23 हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन लैंग्वेज में ज्यादा फर्क नहीं. It might have been simplified somewhere, but they are there.
सब की सब वो है, कोई चेंज नहीं है। ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 पहले भी था, प्रीवियस ईयर, वहां लिखते थे सेक्शन 234 प्रीवियस ईयर इज ए प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। और सेक्शन 3 में क्या लिखते थे? प्रीवियस ईयर is a period of 12 months or a financial year immediately preceding the assessment year. यही बोला जाता था, previous year is a financial year immediately preceding the assessment year. फिर लिखा जाता था, in case a new business has commenced or a profession is set up, a new source of income has come to existence, previous year will be the date of setting up of the business or commencement of it, and would end on 31st March next following. ये लिखते थे। अब ऐसा टैक्स ईयर देखिए कितना सिंपल। टैक्स ईयर 12 months period of a financial year. What is a tax year? 12 months period of a financial year commencing on first day. Tax year is a 12 months period of a financial year commencing on 1st April. तो अप्रैल टू मार्च हो गया, खत्म हो, ठीक है ना? फिर आया सिंप्लीफाई करके, in case in any tax year a business has commenced or a profession is set up or a new source of income has come into existence, the tax year will be A, the period starting from the date of commencement of the business or setting, and B, a new source of income has come into existence and would end by the financial year. जिस दिन से शुरू हुआ 31 मार्च तक टैक्स, बस यही सेक्शन 3। लैंग्वेज सिंपली होगा, ये नहीं लिखा पीरियड ऑफ 12 months पीरियड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे। ज्यादा याद करने की वो था, प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, हाउएवर इन केस व्हेन न्यू बिजनेस हैज कमेंस्ड, द प्रोफेशन इज सेट अप or a new source of income has come into existence, the previous year will be a period starting from the date of commencement of कितनी language and would end on 31st March next. Simplify कर दिया। सेक्शन 4 चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है, उसमें एक गलती की हुई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन वर्ड नहीं लिखा, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। बाकी सी आइए, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है। याद कीजिए, जब हम पढ़ते थे तो यही पढ़ा करते हैं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी पर्सन, incomes received in India, deemed to be received in India, income accrue or rise in India, or deemed to accrue or rise in India, income accrue or rise outside. यही होता था, अभी भी वही है स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, incomes received in India, deemed to be received in India, accrue or rise in India, deemed to accrue or rise in India, accrue or rise outside. कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहले उसमें लिखा होता था प्रोवाइडेड दैट, पुराना लॉ, इन केस ऑफ ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, income which accrue or rise outside India shall be included in the total income only when it is from a business which is set up in India, which is business which has come in India, controlled from India, or profession which is set up. ये लिखा जाता, वहां पर उसको प्रोवाइडेड हटा दिया, बट उसी के कंटिन्यू में लिखा, बट इन केस ऑफ ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, income which accrue or outside India shall be included in the total income if it is from a business which is controlled from India or a profession which is set up. प्रोवाइजर हटके सेक्शन 5 में आ गया 1 में। 5(2) इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, दो ही तो होते हैं, इनकम्स रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया और डीम्ड टू अक्रू, खत्म। यही है, बस यही है। और फिर लिखा, इफ इनकम हैज बीन ऑलरेडी टैक्स देन इट विल नॉट बी टैक्स व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। क्लियर हो गया? ये सेक्शन 5 है, पहले भी था अभी भी है। नेक्स्ट सेक्शन होता था रेजिडेंशियल स्टेटस। अब मैं क्या करूं, आपको ये जो पुरानी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो हमने तब पढ़ी थी, तब कब पढ़ते थे, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट था। क्या लिखता था? सेक्शन 6(1) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, लिखो। फिर 6(1)(a) वाला था डीम्ड रेजिडेंट इफ यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स आउटसाइड इंडिया, डीम्ड रेजिडेंट। फिर 6(2) फर्म HUF, firm, AOP, etc. 6(3) company. 6(3) company होता था। 6(4) any other person. 6(5) if you are a resident of 1 year, you will be resident of one income, you will be resident of all other. 6(6) not ordinary resident in India. अब 6(6) नहीं रहा, अब 6 के 14 सबसेक्शन हो गए। जरा ध्यान से सुनना, आपको याद रहेगा क्या है।
सिंपल 614 पहला 61 sorry, residential status of a person shall be determined under this section. That's all. Section 61 says, of a person, individually, residential status of a person shall be determined under this section. 62, residential status of an individual. पहले लिखते थे, individual is said to be resident in India if he has been in India for a period or periods amounting to all 182 days. ये लिखते थे. Or in the relevant previous year, 60 days or more, and in the 4 preceding previous year, immediately preceding the relevant previous year, it is 60 days or more. That's 365 days or more. ये लिखते थे, बड़ा मुश्किल था. अब सुनिए. In case residential state of individual, पहले लिखते थे individual is said to be resident in India. ऐसा नहीं. Individual is resident in India if A, he is in India for a total period of 182 days. ये लिखा for a period or periods amounting to all 182 days. सब कुछ for a total period of 182 days. वो ब्रिटिश इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है. For a total period of 182 days. फिर he has been in India for 60 days or more in that year, and in the 4 preceding tax year, for a cumulative period of 60 days or more. For a cumulative period of 365. A period or period, not much, for a cumulative period of 60 days in the tax year, and in the 4 preceding tax year, कितना 365 days. खत्म. ये फर्स्ट हो गया. 2 में 60 days है, फर्स्ट में 180 days है, लेकिन 2 में 60 days का 365 भी है. ठीक है. अब आपको याद करिए, एक्सप्लेनेशन थी. In case of a citizen of India who leaves India in a ship or for the purpose of employment, the period of 60 days in condition number 2 supra shall be read as 182 days. पहले तो supra ही नहीं समझ आता था क्या है. Supra और infra याद कीजिए. Period of 60 days in condition number 2 supra shall be read as 182 days. हम कहते थे पहली 182 days हो गए तो दूसरे की क्या जरूरत है. कर दिया. In case of a citizen of India who leaves India as a member of a crew of an Indian ship, or who leaves India for employment, condition number 2B is not applicable. Condition 2 is not applicable. मतलब वो 60 को 180 क्या पढ़ना, 180 तो पहले भी आ गया ना. So condition 2B not applicable. 2B कौन सी थी? 365 days in 4 and 60 days in the current year. हटा दी कि है ही नहीं. अगर 182 days हो गया तो फिर 365 देखने की क्या जरूरत थी. देखो पहले की अंग्रेजी लिखी हुई थी. सो क्या लिख दिया? कंडीशन 2B नॉट एप्लीकेबल. अब आया इन केस ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया हु मेक्स ए विजिट टू इंडिया, हम वहां लिखते थे पीरियड ऑफ 60 days शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 days. फिर लिखते थे प्रोवाइडेड दैट इन केस ही हैज ए टोटल इनकम एक्सक्लूसिव इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मोर देन 15 lakh, the period of 60 days, condition number 2 supra shall be substituted by 120 days. ये लिखा जाता था, पागल हो जाते थे पढ़ते पढ़ते. अभी तो पढ़ने का दिल नहीं करता था. अब इजी कर दिया. पहला क्या किया? In case of a citizen of India or a person of an Indian origin who is outside India. ये तो सिंपल सबको आ गया. Who makes a visit to India. Second condition is not applicable. 2B not applicable. वो 60 is to be substituted by 180. क्या लिखना है? 182 होगा तो वैसे ही आ जाएगा पहली कंडीशन. 2A में आएगा 182 days. 2B में था 60 days and 3, तो ये कहता है कंडीशन 2B not applicable. हाँ, तीसरे में लिखा. Next section, subsection. In case of a citizen of India or person of Indian origin who is outside India, whose total income, exclusive income from foreign source, exceeds rupees 15 lakh, 15 से ज्यादा है. The 60 days shall be substituted by 120 days. 120 days. तो आसान हो गया ना. सर एक ही जगह 60 should be substituted at 120. बाकी जगह तो सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल. 15 से कम है, सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल. जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल. तो सिंप्लीफाई तो हुआ ना सर. अब पढ़ने का दिल तो करेगा कहाँ. मुश्किल से तो वो याद हुआ था. अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 याद आता है. आता है कि नहीं आता सर? आता भी वही है. और अब ये कैसे होगा सर? अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, लर्न करना आसान है. याद है, आप तो फिर भी कर लोगे क्योंकि आप जाइए
साइट में ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन का टेबल है, तो उसको प्रिंट करके टेबल पे रख लीजिए, पता लग जाएगा। मेरा क्या होगा जिसने आज तक कभी कागज नहीं रखा है, जो सेक्शन भी याद थे, सब सेक्शन भी याद थे, क्लॉज भी याद थे, कॉमा तक पता था मुझे कहां लगता है। अब क्या होगा सर? अब मेरे लिए तो मुसीबत हो गई एट द एज ऑफ 79 प्लस। 79 प्लस का हो गया, आपको दोबारा पढ़ना पड़े और कहां होगा 536 रिमेंबर करने पड़ेंगे सर। और मेरी आदत नहीं है कागज रखने की, ये तो रेपुटेशन डाउन हो जाएगी अगर कागज रख लिया तो। मैंने कोई नहीं लिखा है, वो दूसरा था हमने वाला। एक आप ये देखिए, इस उम्र में रेपुटेशन डाउन होगी। इतनी दिनों से चले आ रहे हैं, इनको सब कुछ आता है। अब ये कहते हैं ये तो मुझे बड़ी मुश्किल पड़ गई, सारा दिन यही सोचता रहता हूं होगा क्या, लेक्चर छोड़ूं कि याद करूं। छोड़ तो सकता नहीं, पैशन है, और जो पैशन होता है वो छूटता नहीं। आप देख लीजिए, जो भी लड़ता है ये इलेक्शन आपकी सोसाइटीज में, सेक्रेटरी गालियां पड़ती है फिर भी लड़ता है। लड़ता है कि नहीं लड़ता है? वो गालियां ही पड़ती है सर, वॉचमैन हो गया, ये हो गया, ये क्या है ये वो, लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ता है। ये देखो ना, नशा, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं, ये देखिए जो पीछे ये इलेक्शन लड़ते हैं ना, ये भी लड़ते हैं। मैं, मेरे को भी पैशन है, इनको भी पैशन है। इनको गालियां खाने का शौक है, मुझे तालियां खाने का शौक है, फर्क तो इतना ही है। इनको तो गालियां पढ़नी है, जो मर्जी कर। ये शौक होता है सर, पैशन होना चाहिए लाइफ में। अगर लाइफ में पैशन नहीं है तो लाइफ कुछ भी नहीं। चाहे फ्री का पैशन हो, चाहे पेट का, होना चाहिए। मैं सैर नहीं करने जाता वॉक के लिए बुजुर्ग लोगों के साथ, मैं तो बुजुर्ग नहीं मानता अपने आप को, नहीं जाता मैं। क्यों? मेरी बहू ने ये कर दिया आज, मेरे बेटा ये करता है, मेरा ये, सारा दिन रोते रहते, वॉक थोड़ी करते हैं, कंप्लेंट ही करते रहते हैं वॉक में। ये जितने भी ग्रुप हैं पुराने, मैं नहीं जाता। मैं भैया हाथ जोड़ दू, थोड़ा दिन तो लो ना, ये जिंदगी में तो क्या है, छोटी सी जिंदगी है। ठीक है, क्या करता है, जिस दिन बहू घर में आ जाए टेप लगा लो, बस फिर खुश रहोगे, अदरवाइज तो खुश रह ही नहीं सकते। मतलब पहले कह दूं, जिस दिन घर बहू आ जाए मुंह में टेप लगा लीजिए तो जिंदगी है, नहीं तो जिंदगी कुछ नहीं। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं सर, मैं तो सभा बोलता हूं कि अपने होश हवास में सब कुछ बच्चों को मत देना, मत देना, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए रख लेना। बहुत बार बोला सर, दुख तो होगी, मेरे पर रोने आते हैं। मैं तो कह चुका हूं, सन इज अ सन टिल ही गेट्स ए वाइफ, डॉटर मीन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। कोई गलत नहीं कहा है। बेटा तब तक ही बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हुई। शादी हो जाए तो फिर वो, आपने मोती दान किए अगर आपको पूछता है। हम तो सैंडविच सोसाइटी हो गए सर, माँ बाप से भी डरते थे, बच्चों से भी डरते हैं। एक आदमी खड़े होकर कहते बच्चों से नहीं डरता। कौन है? कोई देख लिया सर, मैं कह रहा भुक्तभोगी नहीं है, ये आपके WRC में भी दिखा लो, कोई खड़ा होकर कहते मैं अपने बच्चों से नहीं डरता। सारे डर, पहले हमारे यहां तो 5-6 होते थे, अब होते ही 1-2 हैं, और डर लगता है। सब कुछ करा लेते हैं जिंदगी में, हमने जो अपने लिए नहीं किया सब कुछ उनको प्रोवाइड किया। किया कि नहीं किया? बिगड़ गए हो, सुनते ही नहीं। हमारे यहां जमाना होता था 4 मिनट में, 2 मिनट में करके। थियरी होती थी पहले, इंस्ट्रक्शंस थियरी, इंस्ट्रक्शंस बेस्ड थियरी। जो मां बाप ने कह दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, पढ़े लिखे है नहीं है, थैंक यू, मान लेते, उसे इंस्ट्रक्शन थियरी। पेरेंट्स की वजह से है, लेकिन इनके बच्चे कुछ नहीं सुनते हैं। वो देख लो, कोई हीरा खड़ा हुआ, तू भी खड़ी होकर देख ले, कोई खड़ा होता है, एक खड़ा हो गया, मैं नहीं डरता, मैं क्या तेरी शादी हो गया तो अभी नहीं हुई, भाग जा। दूसरा खड़ा हो गया, मैं अब नहीं डरता, क्या हुआ, अभी बच्चे नहीं हुए। एक और खड़ा हो गया, मैं भी नहीं डरता, 4 साल का बच्चा है। मैं कहो, वो भी जमीन पे लेट जाता है, कहता मुझे ये चाहिए, और आप उसको दिलवाते हो। सब कुछ दिलवाया, और एक ही कारण, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, उसके पास है तो मेरे, इसके पास ना। ये सब गलत हुआ, नहीं पूछते बच्चे। फिर कह रहे ना, इंस्ट्रक्शन के बाद डिस्कशन थियरी, बच्चे थोड़े डिस्कस कर लेते लेकिन माँ बाप का कहना मानते। फिर आए डिबेट थियरी, डिबेट करते थे, क्यों जाऊं मंदिर में,
भगवान को सब एक से है, नहीं जाऊं तो क्या होगा, क्या है भगवान तो सबका है, मैं मंदिर में धार देने से क्या होगा, एक डिबेट करते थे। पर आजकल है डिनायल थियरी, जो भी कह दो ना करनी है उन्होंने। पहले तो ना पक्की, आप कहते ना पक्की है, देख लो, उन्हें ना करना ही करना है, चाहे बाद में हाँ कर दे, पहले ना करेंगे ही करेंगे। क्या हो गया सर, बहुत। और एक और बीमारी है, मैंने एक लेक्चर में बड़ी बार कह चुका है, मेरी दोबारा बोल देता हूं। मैं, मेरी तो बेटियां हैं, मेरे बेटे नहीं है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तभी कभी कहो तभी नहीं है, बेटियां हैं, बहुत पूछती है, 3 3 बार फोन आता है, तो बीवी नहीं है, वो तो इतना पूछते हैं, बीवी नहीं कभी पूछी थी इतना, मुझे डांटती रहती है वो। बीवी नहीं डांटती थी, बेटियां डांटती थी, और बाप सुन ले, और बहुत अच्छे होता है। लेकिन मैं, एक लेक्चर था, 4,000 लोग बैठे थे, सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बोल रहा, यही बिरसानी जट्टन, मैंने बोल दिया डेलीगेट्स, डॉटर बेस्ड, और बहुत तालियां मारी लेडीज ने, हाँ देखो डॉटर बेस्ड, डॉटर थ्रू आउटर लाइफ। मैंने हल्के से कह दिया, कभी कभी उनको भी पूछ लिया करो जिनके साथ रहते हैं। मैं इतना ही कहा था, इतना ही कहा था, मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। उनको भी पूछ लिया करो, ये सास बहू की क्यों नहीं बनती, मेरे तो समझ में नहीं आता, वर्ल्ड ओवर नहीं बनती, वहां तो रहते ही नहीं साथ में, चलो आराम है। लेकिन यही सास पहले बहू थी, गाली खाती थी, अब सास बन गई, गाली देती है। समझ में नहीं आता क्यों ये बीमारी है, ये क्यों नहीं छूटती। लेकिन नहीं है सर, ये समझ मेरे आज तक नहीं आया, नहीं आ ही नहीं सकता ना। सर हमें दोष देते हैं, मेरे को दोष दिया करते थे ये, हाँ आपने नहीं देखा कि हम कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, लेडीज कहती, मेरी बीवी भी कहती, हाँ आपने क्या देखा, आपने कितनी और मैंने कहा रुक जा, मैं शाम को घर आता था, माँ के पास जरा बैठ जाता था, थोड़ी देर ज्यादा बैठ गया, नहीं बैठो ना, मेरे पास क्या करने आए हो, वही सो लो, वही सो जाओ। ये सुना, बीवी के पास चले जाना शुरू कर दिया, तो माँ कहती हो गया ना अब तेरी शादी, अब हम कौन है। तो एडजस्टमेंट किसने करी सर, हम लोगों ने करी है। इनको तो सिखाया जाता है शुरू से ही, बेटी को घर जाना है दूसरे, हमें तो सिखाया नहीं, अपने घर में ही हम पराये हो जाते हैं। रॉन्ग, चलिए बातों बातों में कहीं ले गया, आइए वापस आते हैं। तो चलिए सर, ये 6 में यहां आया, फिर फिर लिखता है, ये तो हो गया 6 2 6 3 6 4, अब आया in case he does not satisfy the condition at 2 6 and the following conditions are satisfied, he is said to be deemed to be resident in India. Condition number 1, he is a citizen of India, he is not liable to pay tax in any foreign country or authority, and his total income without income from foreign source exceeds 15 lakh. ये अगला सेक्शन डाल दिया 6 7 6 8। अगर वो सेक्शन 6 2 और 2 3 4 5 की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं होगा। तो 182 डेज है, तो फिर क्यों डीम्ड रेजिडेंट के नहीं, वो कर दिया। उसके बाद था 6 9, रेजिडेंशियल स्टेट्स ऑफ HUF फर्म एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट कंपनी, वही था। Firm is set, HUF firm is set, is resident in India if it is wholly controlled from India. That's all. Wholly controlled from India resident, और partly wholly करिए, wholly controlled from India resident, 2 लाइनों में खत्म। फिर company is resident in, set to be resident in, company resident in India if it is an Indian company or the place of effective management is in India. वही लैंग्वेज, कोई चेंज नहीं है सर, कोई चेंज नहीं। एनी अदर पर्सन इज wholly controlled from India, ऐसे लिखा 613 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको दे दिया कौन मानेगा। सब घबराने की जरूरत नहीं है, सारी एक्सप्लेनेशन मर्ज हो गई, और क्या बन गए, सब सेक्शन बन गए, सब सेक्शन बन गए, सारे प्रोविजो मर्ज हो गए, सब सेक्शन बन गए। 6 1 है वो चला, ठीक हो गया सर। 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, पहले भी यही था, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सेक्शन 8 ये वो है जो 9B आया है, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म when a partner receives anything, और dissolution और reconstitution of a firm, 9B आता है ना, वो 9B को सेक्शन 8 कर दिया। वही 9B आपको को कैपिटल एसेट मिले या इन्वेंट्री मिले एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डीम्ड ट्रांसफर माना जाता है। याद आया 9B जो पीछे आया था, वो 8 हो गया। अब डीम्ड टू अक्रू और राइज सेक्शन 9, लेकिन उसके साथ 9A मर्ज कर दिया है, जो फॉरेन फंड्स होते थे वो 913 में मर्ज कर दिए, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है सर। सेक्शन 10 क्या होता था पहले,
इनकम एग्जेम्प्ट या डू नॉट फॉर्म, अब 10 नहीं, एक सेक्शन रुक गया 5(1)(a), सॉरी 5(a). कभी आपने नाम सुना है 5(a) सेक्शन का इनकम टैक्स? गोवा, दमन, दीव वगैरह में या पोर्टुगीज सिविल कोड लगता है, पोर्टुगीज देयर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ apportioning the income in the hands of spouse. जो सैलरी इनकम आती है वो तो इंडिविजुअल को जाती है, हस्बैंड ने कभी हस्बैंड का वाइफ, बाकी कोई भी और इनकम है, हस्बैंड कमाए वाइफ कमाए, उसको एग्रीगेट करके 50% हस्बैंड में 50% वाइफ में जाता। ये लॉ है पोर्टुगीज सिविल कोड जहां लगता है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन अप्रोप्रिएशन ऑफ द इनकम इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस। ये वो सेक्शन 5(a) को अब सेक्शन 10 कर दिया, तो ए तो हटाना था, उसको सेक्शन 10 कर, अब सेक्शन 10(11) हो गया है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल। सुनिए कोई बात, लेकिन अगर सेक्शन 10 जाओ तो कम से कम 80 है एग्जेम्प्ट इनकम, लिखा तो 1050 तक है, 10 क्लॉज 50, लेकिन 1010, 1010A, 1010AA, 1010B, 1010C, ये सारे सेक्शन ही तो है, ये सारे सेक्शन ही तो है, बहुत है, 1022, 1022A, 1022B, 1020C, सारे सेक्शन है। अब क्या किया है जस्ट सुनना, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, in computing the total income of a person, the incomes enumerated in schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5 and schedule 6 shall not be included subject to certain conditions which may be satisfied. क्या किया है? In computing the total income of a person, incomes enumerated कहाँ ले गए? Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4, Schedule 5, Schedule 6 shall not form part of total income subject to the condition being satisfied. वहां पर लिख दिया in case of every person, एक Schedule 2 in case of eligible person, Schedule 3 in case of a non-resident, Schedule 4 in case of 6 शेड्यूल बना दिए, 2 से 6, 5 शेड्यूल। वहां देखिए फ्रंट लाइट बैक हैवी, जितना ज्यादा कितने ज्यादा थे सेक्शन 10 में, 20, 25, 30, 40 पेज आते थे, सब उठाकर शेड्यूल में डाल दिए, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, एक और शेड्यूल 7 डाला, इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन income, sorry, specified person enumerated in schedule 7, income of a specified person enumerated in schedule 7 shall not form part of his total. Where the condition mentioned in schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5, 6 are not satisfied, it will be chargeable to tax in the tax year in which these are not satisfied. Similarly 7 में भी ये लिख दी, conditions ला दी, अगर condition satisfy करो तो वो they do not form part of total income, refer to schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5, schedule 6, और कुछ specified person schedule 7, उनसे देख लीजिए, अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो एग्जेम्प्ट है, नहीं करेंगे तो टैक्सेबल। बस यही 11 आ गया, कितना बड़ा सेक्शन, इतने चार सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, बस ये लिख के बाकी सब पीछे लिख। क्लियर हुआ सर? कोई मुश्किल है? पीछे देखिए, जिसको दिखता देख लेगा। एग्जाम्पल 10 हो गया, 11 हो गया, पहले 11, 12, 13 चैरिटेबल ट्रस्ट का होता था, हटा दिया यहां से, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट जगह जगह पे था। 11, 12, 13, 164 टैक्सेशन, 115 BBI, 115 BBC अनोनिमस डोनेशन, 115 TD एग्जिट टैक्स, कई तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्शन अलग अलग फैले हुए थे। सबको इकट्ठा करके सेक्शन 332 से लेकर 355 कर, 332 से 332 रजिस्ट्रेशन का है, 355, 334 एग्जिट टैक्स का है, सारे वहां इकट्ठे कर दिए। स्पेसिफाइड वायलेशन और नॉन एनी अदर वायलेशन सब के सब है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। लैंग्वेज सिंपल हो सकती है, चेंज नहीं। 332 से लेकर 355 क्लियर है सर? आई तो अब 13 तो है नहीं, अब आया सेक्शन 12, 11 तो बोल दिया, 12 क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, दोनों को इकट्ठा कर दिया। 13A 13B होता था, दोनों को इकट्ठा कर दिया। इनकम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी
or electoral trust shall be exempt subject to the condition enumerated in Schedule 8. वहां शेड्यूल में जाइए, वहां कंडीशन लिखी है, अगर सेटिस्फाई होती है तो हम इनकम माफ कर देंगे। खत्म। लाए बहुत शुरू में लाई 12 हो गया, पहले 14 होता था हेड्स ऑफ इनकम, अब 13 है। वही 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। कौन सा सेक्शन? पहले 14 था, अब 13 हो गया। चेंज नहीं है सर, चेंज नहीं। 14A कौन सा होता था? 14 कैपिटल ए, इनकम एग्जेम्प्ट, सो एक्सपेंस नॉट अलाउड। वो सेक्शन 14 कर दिया, 14 कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन क्या होता था? 15, 16, 17। याद कीजिए, सैलरी का यही था सेक्शन 15, charge of salary. Salary is taxable on due or receipt basis, whichever is earlier. Arrears of salary shall also be taxed in the previous year in which these arrears are paid. If the salary is paid to the partner, it will not be taxable under salary, it will be taxable under business supervision. वही लिखा है सेक्शन 13, चार्ज ऑफ सैलरी, कोई चीज। नेक्स्ट होता था, अब कौन सा है? 15, वो भी 15। अगला सेक्शन क्या था? आज चिंता ना करो, मैं सब देख के चलता हूं, मेरे को पता कौन सी फ्लाइट कितने बजे जानी है, लेकिन काम पूरा करके जाऊंगा, डोंट वरी। अगला सुनिए क्या था? 16 डिडक्शन थी, अब 16 डिडक्शन नहीं। पहले 17 होता था, 17(1) सैलरी, 17(2) मीनिंग ऑफ परक्विजिट, 17(3) मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी लियो सेल। ठीक है ना? अब है सेक्शन 16 मीनिंग ऑफ सैलरी, पूरा 16। सेक्शन 17 मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स, सेक्शन 18 मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी लीव ऑफ सैलरी। जो 17(1), 72, 73 होता था, वो 16, 17, 18 कर। 19 सेक्शन क्या है? डिडक्शंस। सब नहीं है सर, 2 नहीं है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो नहीं है। जितनी भी ग्रेचुटी मिलेगी, यू हैव टू ऐड इन द ग्रॉस सैलरी। जितनी भी लीव इन कैशमेंट मिलेगी, you have to add to the gross salary. जितने भी commuted pension मिलेगी, you have to add to the gross salary. जितने भी retirement benefit मिलेंगे, you have to add in the gross salary. And deduction will be allowed from gross salary under section 90. पहला tax on employment, दूसरा standard deduction वही 50-75, थर्ड gratuity, इस तरह टेबल बना दी और पूरा सेक्शन 19 चला गया। So please note, salaried person getting any type of retirement benefit except वो छोड़ दी HR अभी भी उधर है, will have to take the entire amount received under gross salary, and then if the certain conditions are satisfied, he will be allowed deduction under section 19. So 19 is a big section now, और 2 नहीं है, अब बहुत ज्यादा डिडक्शंस है। क्लियर हो गया सेक्शन 19? क्लियर है सर? पहले सैलरी 18, 19, 20 अगर याद हो तो वो होता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो तो खत्म हो चुका है। अब आया 20 to 20, सेक्शन 20 से 25 हाउस का। पहले 22 to 27 था, अब क्या है? 20 to 25। 22 to 27 6 सेक्शन होते थे, अब 20 to 25 5 सेक्शन है। क्या है ना? वो 7 होते थे, 6 है। 20 to 25 6 ही तो होंगे, 20 भी तो गिनना है, 6 वो होते थे 22 to 27, वो 7। सुनिए क्या पहला सेक्शन 20, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 20 हो गया, 22 के बाद एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ द बिल्डिंग और द लैंड अपॉर्टेड ड्यू। पहले लिखा था ऑफ विच द असेसी द ओनर, अब नहीं लिखते ओन्ड बाय द असेसी। ऑफ विच द असेसी द ओनर बोलते थे ना, या लिख दिया ओन्ड बाय द असेसी, बाकी कोई चेंज नहीं किया। Annual value of the house property consists of the building and the land or land appertaining of which the assessee the owner, मेरे को याद रहेगा नहीं, which is owned by the assessee shall be taxable under the head income from house property. यही लिखा है। However, if there is a property which is wholly or partly used for the purpose of assessee's own business, it will not be taxable under house property, it will go to business। अपना business के लिए, किराए के लिए नहीं, अपने business के लिए यूज करेंगे तो वो बिजनेस वही है। 22, 20 वो जो 22 था, 21 डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, वहां पे भी तो 23 था, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पार्टली लेट, वही है 20।
21 हो गया। 24 क्या होता था? डिडक्शंस। अब वो 22 हो गया। सेम है डिडक्शन, नो चेंज, सेम डिडक्शंस। वही, वो जो म्युनिसिपल टैक्सेस थी वो एनुअल वैल्यूज में लेस हो जाती थी, उसके बाद डिडक्शन आती है ना। पहली डिडक्शन वही स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, वही। लेकिन सेक्शन आ गया, सेक्शन कौन सा मैंने बोला? 22, 24 नहीं, 22, 23 एरियर्स ऑफ रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, वो 23 हो गया। 24 पहले होता था को ओनर्स, वो 24 हो गया, को ओनर्स वाला 24। 25 इंटरप्रिटेशन, वही डीम्ड ओनर जो होता है 20 से 25। हाउस बिजनेस का चैप्टर है 26 टू 66। 26 टू 66 पहले कौन से थे? 28 टू 44 डीबी, वो डीबी तक है, वो 61 थे, अब 65 थे, सॉरी, अब 41 है, 41 सेक्शन। वो जो 28 था वो 26 हो गया है, जो 29 था हाउ टू कंप्यूट बिजनेस इनकम वो 27 हो गया। लेकिन पहले रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, फिर रेंट इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग होता था, वो दोनों को इकट्ठा कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। वही अलग अलग रेंट, इंश्योरेंस, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एनी एसेट कर दिया। तो पहले दो होते थे 30, 31, अब ये उसको 29 वो कर दिया। आपको फिर इंप्लॉइज के जितने वेलफेयर थे वो नेक्स्ट सेक्शन डाल दिया, ऑल एम्प्लॉय वेलफेयर इन वन सेक्शन। जो 37 सेक्शन था वो 34 हो गया। जो 40 वाला होता था, 40A 40B वाला, वो 35 हो गया। जो 40 कैपिटल ए होता था वो 10,000 वाला, और वो कितना हो गया उसके बाद? 36 हो गया। और जो 43B होता था वो 37 हो गया। अब 43B 37 है, अब 37 34 हो गया, 43B 37 हो गया, वहां 37 चला गया। जो वो 44 ADA कौन से सेक्शन थे वो अब 58 हो गया। और एक ही टेबल में तीनों डाल, 1 बिजनेस अदर देन ट्रांसपोर्ट, 2 ट्रांसपोर्ट, 3 प्रोफेशनल, 58 सेक्शन, 58। अकाउंट्स 44 डबल ए था वो 62 हो गया है। जो 44 ए भी याद करते रहे वो 63 हो गया, वो 63 हो गया है। नाम सब कुछ वही है, कुछ इकट्ठे किए, उनको कंबाइंड कर दिया, ये सारे करके 66 में खत्म। 67 टू 91 कैपिटल गेन है, वही है 67 45, 68 46, 69 46 से 70 47, 71 47 ए, 72 48 हाउ टू कंप्यूट, 73 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 74 वो जो 54 था वो 82 हो गया, जो 54 बी था 83 हो गया, जो 54 ईस्ट डी था वो 83 हो गया, जो 54 ई सी था वो 84 हो गया। सेक्शन ही बदले। जो 54 एफ था वो 86 हो गया। ये नंबर बदले, अंदर सिर्फ लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया, नंबर सेक्शन के बदल गए, पूरे के पूरे वही सेक्शन है। जो रेफरेंस टू दी ए होता वो होता वैल्यूएशन ऑफिसर 55A, वो 91 हो गया। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 55 होती थी वो 90 हो गया। सो सेक्शंस नंबर हैव चेंज, नथिंग हैज चेंज। मैं आपको बता दूं, एक आइटम को भी 1 रुपया भी चेंज नहीं किया। इवन माइनर की इनकम इंक्लूड होके 1500 मिलता था, अभी भी 1500। उन्होंने ला नहीं बदला है, जी नहीं। वो कहते ला तो बाद में बदलेगा, आप बदलो। अभी तो हमने रीप्रोड्यूस करा, रीफॉर्मेट किया, रीड्राफ्ट करके आपके सामने सिंप्लीफाई कर दिया। वी हैव नॉट टच्ड एनीथिंग। हाँ, एक चीज अच्छी करी। पहले होता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है और लेट आउट है खाली हो गई, तो वो कहता था उसको लेना पड़ेगा एनुअल वैल्यू और लेटिंग वैल्यू विच एवर इज मोर। कहता ना, एक्चुअल रेंट रिसीव, खत्म, एक्चुअल रेंट रिसीव। व्हाई दिस? वही वो करो कि एनुअल वैल्यू लो, एक्चुअल सिंप्लीफाई कर। सिंप्लीफाई तो ऐसा भी किया, सैलरी में भी तो किया ही है। सैलरी में क्या करते थे? हमने अपने जमाने में पढ़ा, आपके जमाने में भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। स्पेसिफाइड इंप्लॉय, जिसको नॉन मॉनेटरी परक्विजिट स्पेसिफाइड इंप्लॉय को टैक्स लगते थे, वन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी,
याद आया करा था, वन हु हैज इंटरेस्ट, उन्होंने एज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट द कम, याद है किया था। और तीसरा क्या था, वन whose income under the head salary exclusive of non-monetary purposes exceed 50,000, 50,000 रुपए। मेरे जमाने में भी 50,000 थे, आपके जमाने में भी थे, आज वाले पढ़ने वाले भी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए 4,000 रुपए महीना होता है, उसको फ्री मोटर कार दी जाएगी, उसको फ्री वो दिया जाएगा, नॉन मॉनेटरी पर्पज लिखा था, ठीक कर दिया एज एज स्पेसिफाइड बाय द। याद आया हम लोग कड़ा करते थे, मेरे जमाने में भी था, आपके भी था, सबके था। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 100 रुपए की कॉपी नहीं आती, कितना 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड पर सिर्फ 2। और एग्जाम में सवाल आता था, he's been given 200 rupees for 3 children, how much is exempt? कितना टॉर्चर करते थे इंस्टीट्यूट वाले। सर अभी भी सपने आते, मैं फेल हो गया। आते कि नहीं आते बता दो, आते हैं ना। ये टॉर्चर करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट। ये कोई सवाल है? 100 रुपए महीने के लिए कितना एग्जेम्प्ट होगा? 100 रुपए महीना क्या होता है भाई? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस रुपीज 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2। 300 रुपए की एक थाली नहीं आती आज। 300 रुपए मेरे जमाने में भी थे, आपके जमाने में भी थे, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके जमाने में वही पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ओल्ड रिजीम में तो खत्म हो जाएंगे नो डाउट। और फिर वो एक और आता था, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट, पेशेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट, ट्रेवल attendant and one patient stay outside the exempt, and travel outside India will be exempt only when his gross total income exclusive of this does not exceed rupees 2 lakh। 2 लाख रुपए 15,000 रुपए महीना 16,000 होता है, उसको फॉरेन ट्रीटमेंट देंगे। चला आ रहा था, अभी तक यही चला आ रहा है। अब लिख दिया एज में बी स्पेसिफाइड। तो कुछ ऐसी चीजें चेंज करी, बाकी कुछ नहीं किया। फिर वो 92 वो हो गए, 92, 93, 94, 95 वही है जो 56, 57, 58, 59, 96, 97, 98, 99, 100 वही है जो 64 था। और सॉरी 60 to 60, 65 वही क्लबिंग ऑफ वही है, एक को ऐड कर दिया बस और कुछ नहीं। उसके बाद 68 सेक्शन 102 है, 69 सेक्शन 103 है, 69 ए और बी दोनों मिलाकर 104 है। वो जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर 69 सी था वो 105 है, जो वो हुंडी वाला था वो 106 है, और 107 में लिखा ये टैक्सेबल होगा एज पर 195। 195 वही है जो 115 बीबीई था, वही 60% वाला। उसका नंबर हो गया 195। 196 सेक्शन 111 ए, 197 सेक्शन 112, 198 सेक्शन 112 ए, ये वो है जो सेक्शन 199 100 BA, 200 115 BAA, 201 115 BAB, 202 जो हम करते हैं BSc, 203 115 BAD, 204 115 BAE। वही सेक्शन है सर। सबसे खतरनाक सेक्शन तो वो हो गया, हमने रिटर्न ऑफ इनकम बहुत याद रहता था, 139 और 263 हो गया। 139 इज 263, 262 हुआ वो पैन नंबर, वो 139, वो 62, 263 100 वो क्या रिटर्न ऑफ इनकम, 264 वही रिटर्न प्रिपेयरर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर जो 139B होता था, रिटर्न टू बी वेरीफाइड 140 होता था, वो 265 हो गया, नेक्स्ट वाला 266 हो गया, नेक्स्ट वाला 267 हो, 279 हो गया 147, 280 हो गया 148, 270 हो गया असेसमेंट, 274 हो गया फेसलेस असेसमेंट। नंबर बदले, चार्ज नहीं बदला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदला, सिंप्लीफाई किया। जहां पर लिखते थे वेयर, कहीं जगह लिख दिया इफ, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया, सिंप्लीफाई किया। ये मैं बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन हुआ। 326 से 336 से लेकर 356 से अपील चली गई। एक सेक्शन सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है रिपील एंड सेविंग्स। ये सेक्शन 536 है, ध्यान से सुनना। यही सेक्शन 297 होता था इनकम टैक्स एक्ट। रिपील एंड सेविंग का क्या मतलब है सुनिए। दे इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज हेयर बाई रिपील्ड, लिख दिया हेयर बाई रिपील्ड, फिर लिखा सेविंग्स। कोई भी नोटिस पहले दे चुके हैं, कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है,
कोई सर्च प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है, कोई पुराने लॉसेस हैं, ये सब पे ओल्ड एक्ट लगेगा। मतलब हर चीज पे वो सेविंग्स बोलते हैं कि भाई ये एक्ट जो पुराना है अभी 5-10 साल तो चलेगा। अब कोई ऐसा डिडक्शन जो 10 साल अलाउ थी और वो खत्म हो चुकी है, लेकिन पुराना एक्ट तो चलेगा ना। अभी 10 पूरे नहीं हुए तो ATIC 10AA है ना, तो अगर अभी तो है, नाउ सपोज यू हैव कंप्लीटेड ओनली 6 इयर्स, और नए लॉ में तो है ही नहीं वो, लेकिन वो पुराना एक्ट चलेगा। जो भी वो डिडक्शन थी, जो भी एग्जामिशन थी, जो भी वो अलाउंस था, जो भी लॉसेस थे, जो भी अपील पेंडिंग है, जो भी प्रोसीजर है, सब पुराना एक्ट लगेगा। उसको बोलते हैं सेविंग्स। ये 536 में लिखा है। 535 पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, ये हर जगह लिखा जाता है। 3 साल तक पावर दी जाती है, कोई डिफिकल्टी, GST में भी था पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। सो ये लॉ 12 और 16 आपको वो प्रोविजन बता दिया। मैं जो बता रहा हूं कि प्लीज नोट, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस कंट्री में अगर GST सक्सेसफुल किसी ने किया है तो ये सब बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेहनत तो हमने की है और करा है, और ये भी इनकम टैक्स भी पढ़ लेंगे, हमें आदत है पढ़ने। जब से पेशेंस आया शुरू तो हो गया पढ़ना, पहले तो पढ़ते ही नहीं थे ना। तो पहले तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा था, इफ द AO इज सेटिस्फाइड, इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, इफ द कमिश्नर अपील इज सेटिस्फाइड। पहले सारे एक्ट में लिखा है, मैंने थोड़ी लिखा है सर। लिखा है कि नहीं लिखा बताइए? अभी भी लिखा है, लेकिन अब सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? पेशलेस है। थोड़ा सा फर्क पड़ गया, पढ़ना पड़ेगा सर। और हम हार्डवर्क करना चाहते हैं, हमने किया है, ऐसा नहीं है, सभी ने किया है। कोई ऐसा CA बन ही नहीं सकता जिसने हार्डवर्क ना किया। सो घबराने की जरूरत नहीं है सर, डोंट बॉदर। एक मैंने बोल लिया कि वो कंपेरेटिव चार्ट गूगल, उसमें जाइए अपने इनकम टैक्स की साइट पे, वो लेकर अपने टेबल पे रख दीजिए। ओल्ड सेक्शन, न्यू सेक्शन, टेक्स्ट सेम है, लैंग्वेज फर्क हो सकता, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई चीज का फर्क नहीं। नंबर बदल गए, वो तो आपको पता है क्यों बदले। ऑल कैपिटल हैव बीन गिवन द अलॉट नंबर, सो नथिंग टू वरी। वी आर देयर टू डू हार्ड वर्क, CAs आर नोन फॉर वर्क। करना तो पड़ेगा, चुप करके कर लो, रो के कर लो। अच्छा भाई, हम तो मैं तो खुश हूं, हमारे तो उनको भी नहीं, हमारे तो क्लाइंटों को भी पता लग गया था कौन सा सेक्शन है। अब तो कम से कम हमसे पूछेंगे कौन सा नया सेक्शन, बता तो दो। देखिए हमारे मोदी जी कितना काम करते हैं। 87A सेक्शन 156 हो गया है, वो 87A 12 लाख, 7 लाख 12 लाख हो गया। 1 मिनट में सबको अमीर कर दिया, सारे 7 वाले 12 बन गए, सारे क्लाइंट 12 हो गए। वो वही रहना, टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख। समझ में आ गया? वो 20 से ऊपर नहीं जाना, 40 से ऊपर नहीं जाना, लेकिन 12 तो बन ही गए। 2 आदमी घर के 24 लाख वहां पे, देखिए 3 हो गए तो 36 लाख वहां पे। और वो कुकरी क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, रीडिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर। मैं कितनी बार कह चुका हमारे यहां इतनी ब्यूटी नहीं है जितने ब्यूटी पार्लर की इनकम दिखाते हैं। वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। वो 58 बन गया और आपको 12 लाख कर दिया। मोदी जी ने GDP बढ़ा दिया। 5 ट्रिलियन इकॉनमी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। नंबर 2 के पैसे की कोई जरूरत नहीं है, नंबर 1 काम आता है। नंबर 2 से बच्चे बिगड़ते या आप खुद बिगड़ते। क्या जरूरत है टैक्स दो? 24 लाख रुपए हस्बैंड कमाए, 24 लाख रुपए वाइफ कमाए, सिर्फ 6 लाख से 3 24 क्या है, टैक्स इतना भी नहीं देते। और वो 7 के 12 तो हो गए सब, और फर्क नहीं पड़ा हमें। और क्यों नहीं फर्क? अरे पहले 8.8 रिटर्न आती थी करोड़, उसमें 5.9 करोड़ जीरो टैक्स देती थी। अभी भी तो जीरो ही देगी, अभी भी तो जीरो ही देना है। 7 के 12 हो गए, क्या फर्क पड़ता है? अमीर सब हो गए, क्लाइंट आपके सब अमीर हो गए कि नहीं हो गए? तो मोदी जी का है ना, चलाया ऐसा चीज, खुश हो गए। अरे सैलरी वाले भी खुश हो गए ना। आपको CA भी आता है, 6 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज होता है सर, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। 10 लाख लो, 12 कर लो यार, तो भी माफ है। और जब तक उसका बढ़ेगी तब तक वो भी बढ़ जाएगा। तो सैलरी वालों को भी टैक्स नहीं देना है। ये तो CA की बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत है। मैं गया किसी के पास, बस तुम्हारे यहाँ कितने इंप्लॉई हैं जो कि सैलरी 12 लाख से कम लेते? कहता 70%। मैं 70% TDS का काम भी खत्म, TDS भी नहीं करना। जब 12,75,000 तक TDS ही नहीं है तो क्यों काटोगे? तो 70। अरे कई जगह तो 90%, छोटी जगह पर 90 से ज्यादा % लोग 1 लाख रुपीज पर मंथ से कम कमाते। आम ही नहीं।
टैक्स भी नहीं काटना और उनको टैक्स देना ही नहीं। सो ऐसा नहीं है सर, सरकार सुन रही है लेकिन टैक्स तो आप दिलवाएंगे, आप देते हैं, लोग डरते हैं। दे नो मच मोर देन व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन। 126 देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। 126 कंट्री से आता है इंफॉर्मेशन और इंडिया में पूरी जगह से आता है, और वो इंफॉर्मेशन वो पास ऑन कर देते हैं सीबीआई, सीबीडीटी, डीसीबीआईसी, सबको पास ऑन करते थे जिसके रहने। सो दे नो मच मोर। और एक चीज बता दूं, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न वो तो मुझे हमेशा ही आती है फ्लाइट का, मुझे पता है सर, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, अब खत्म होने वाला। 4:30 हुए, 6:30 की फ्लाइट है सर। हाँ? मैं भी ट्रैफिक जानता हूं। चलिए बस 2-5 मिनट, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। दे आर सो कंसर्न, लेकिन मैं भी घड़ी देख के काम करता हूं, ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी सर, ये अमृतसर से यहाँ सेटल हो। पहले भी गवर्नमेंट ने इतनी ड्राफ्टिंग कमेटीज बनाई, उनकी रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं की, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दी। आप भी एक कमेटी के मेंबर थे, तो उनकी रिकमेंडेशन और इस बिल में कोई मेजर डिफरेंस है? सर जो जो उनको इंपॉर्टेंट थी वो सब ले चुके हैं, हर साल लाते और हर साल आगे भी आना है। एवरी ईयर दे हैव ब्रॉट दोस थिंग्स इन दी एक्ट। वो जो अमेंडमेंट आती है वो भी आएंगे। हुआ क्या है, वो कहते हैं जुडिशियल डिसीजन खत्म हो जाएंगे, लैंग्वेज हमने अगर सारा लॉ को कंबाइन कर दिया तो ट्रेनिंग इनको कौन देगा। तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उनका बेसिक कंसेप्ट ये था कि लोगों को पढ़ने का दिल करे, जो दिल नहीं करता था, समझ में आता नहीं था। 12-12 लाइनों का एक सेंटेंस, 6 लाइन के बाद तो कॉमा होता, कम से कम वो तो बदल गए ना, शॉर्टर स्मॉल सेंटेंसेस हो गए। हाँ दिक्कत हुई है, देखो ना, पढ़ना पड़ेंगे सारे, और ये पढ़ते बहुत है। दिक्कत तो ये है कि पढ़ना पड़ेगा, पहले तो सारे याद पढ़े थे। सर मेरी तरफ देख के कुछ ना हो, मैंने बगैर कागज के पढ़ाना है, इतने बड़ा, वैसे मैं इतने सेक्शन बोले, आपको क्या पता ठीक है कि गलत है? आपको क्या पता ठीक बोल गया कि गलत बोल गया? बट इन एनी केस टू ए ग्रेट एक्सटेंट सही थे। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लर्न करने में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टेबल पे रखना ही है और करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।